Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to machine learning. So today we'll be discussing entropy in detail, and we'll be looking at it intuitively and mathematically both, and with some examples to completely try to understand and grasp the concept of entropy. And we will also briefly look at cross entropy, and we'll see how that is useful in the evaluation of language models and other uses of the same theory of cross entropy. So let's begin. These are some of the references that I have used to create this video and these slides. यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को recommend करूँगा कि although मैं आप लोगों को ये expected values जो है ये revise करवा दूँगा, लेकिन still it's better कि अगर आपको कोई अपने stats के concept में अभी कुछ weakness है, कोई चीज़ अगर clear नहीं है, तो एक दफ़ा इन videos को देख लें. ये स्टैट क्वेस्ट जो जॉर्ज टामर का है, इसमें उन्होंने बड़े आसान तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े इंट्यूटिव तरीके से एक्सप्लेन किया है व्हाट एक्सपेक्टेड वैल्यूज आर. दिस वीडियो बाय द वे जो यहाँ पर मैंने रेफर की हुई है, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की एक्सपेक्टेड वैल्यूज के बारे में है. ये एज अ सेपरेट वीडियो ऑन द एक्सपेक्टेड वैल्यूज फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स. ऑल्दो जैसे कि मैंने कहा कि इन द फर्स्ट फ्यू स्लाइड्स आई विल ऑल्सो ब्रीफली रिवाइज द कॉन्सेप्ट, ताकि अगर कोई चीज़ें ब्रश अप करने की हैं तो आपको वहाँ से याद आ जाए. ठीक है जी, सो लेट्स बिगिन. ऑल राइट जनाब, सो जस्ट अ क्विक रिविजन. जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, रैंडम वेरिएबल्स बेसिकली ऐसे वेरिएबल्स होते हैं which can take on a set of possible outcomes which could be discrete outcomes or continuous outcomes, and there is a probability associated with each discrete outcome. Yeah, there is a probability associated with each interval of continuous outcomes that the random variables could take on. So more formally, a random variable, usually written as these capital letters, is a variable whose possible values are numerical outcomes of a random phenomena. ये experiment हो चुका भी हो सकता है, होने वाला भी हो सकता है. So there are two types of random variables, discrete and continuous. So for the discrete random variables, a discrete random variable takes on only a countable number of distinct values, such as, for example, 0, 1, 2, 3, 4, or whatever. These are just countable values. Examples of discrete random variables include, for example, the number of children in a family, the Friday night attendance at a cinema, the number of patients in a doctor's surgery, the number of defective light bulbs in a box of 10, and so on and so forth. So you can keep constructing examples. But the probability distribution of a discrete random variable is the list of probabilities associated with each of its possible values. So it's sometimes also called the probability function or the probability mass function, क्योंकि ये discrete values को probabilities दे रहा है. For example, एक coin flip है, इसकी जो possible outcomes हैं वो दो हैं, heads and tails, अगर हम यूं define कर रहे हैं इसको, and there is a probability associated with each of those possible outcomes. For example, in case of a fair coin, it is 0.5 associated with each of them. अगर एक coin possibly 3 values ले रहा है, वो सीधा भी खड़ा हो सकता है और वो अपनी दो sides पे भी गिर सकता है, तो it has 3 possible outcomes, and you can assign a probability to each of those outcomes. तो अब वो दोनों साइड से 0.5 से अगर ये फेयर भी है, माइनस करना पड़ेगा कुछ, और वो सेंटर वाले सीधा खड़ा होने वाली वैल्यू को कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी आपको. सो ये इसकी 3 प्रोबेबिलिटीज होंगी, इसका प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन होगा. ठीक है, सो आई थिंक यू नो द कॉन्सेप्ट. डाइस के बारे में सोच लें, और आपके जहन में मजीद क्लियर होता जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हम इस एग्जाम्पल में ले सकते हैं. अच्छा जी, so suppose a random variable x may take k different values with the probabilities with the probability that x is equal to xi, defined to be the probability of x taking on this outcome xi is equal to pi. So it takes on the value xi with the probability pi. The probabilities pi must satisfy the following two constraints जो already आपके इल्म में हैं. एक ये कि each value of the probability could be between 0 and 1. So ये इन दो extremes के बीच में एक probability हो सकती है, and similarly the sum of all probabilities must be equal to 1. ठीक है, तो ये दो, यानी कि it's a legal probability. So the distribution is defined over legal probabilities, and it sums up to be a legal probability of 1. ठीक है, अच्छा जनाब, बिल्कुल उसी तरह से आपके जो continuous random variables होते हैं, it takes on an infinite number of possible values. The examples include, for example, the height, weight, the amount of sugar in an orange, the time required to run a mile. So a continuous random variable is not defined at a specific value. Instead, it's defined over an interval of values, and it's represented by the area under the curve, or the integral. So the probability of observing any single value is equal to 0, since the number of values which it may take on is assumed to be infinite. ठीक है, ये सब रिविजन है, आपने बहुत बचपन में ही चीज़ें सारी पढ़ी हुई हैं. Suppose a random variable x may take all values over an interval of real numbers, then the probability that x is the set of outcomes a
PA is defined to be the area above A and under a curve. The curve which represents a function Px must satisfy the following. The curve has no negative values, so each of these Px needs to be greater than 0 for all x. So this Px needs to be greater than 0 for all x, to say it more correctly, and the total area under the curve is equal to 1. So the curve meeting these requirements is known as a probability density curve, or this function is known as a probability density function. ठीक है, so ये आपके हो गए random variables. So a variable that can take on either from a set of discrete values or from a range of continuous values according to some probability distribution. अच्छा जनाब, जो कॉन्सेप्ट जिसकी हमें ज़रूरत है आज की डिस्कशन में वो है एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट. सो द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल. ठीक है, सो वेरी सिंपली द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद फाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स x1 x2 x3 up to xk occurring with probabilities p1 p2 to pk. probability mass function है ये. The expectation of x or the expected value of x is defined as this. It is simply the weighted average of these outcomes. So each outcome weighted by its probability. ठीक है, so आपने sum कर दिया सारी outcomes को और each को weigh कर दिया है उसकी respective probability के साथ. ठीक है, so this is just the weighted average across all possible outcomes. So ये नहीं what's the value that this variable is expected to take on. It's expected to take on these values with these probabilities. So इसका सबका आपने एक weighted mean यहाँ पर दे दिया है. So as p1 p2 up to pk इनका sum करें तो 1 है. The expected value is the weighted sum of the xi values with the probability pi as the weights. ठीक हो गया, ये आपके डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की हो गई. और इसी की बात अगर हम कंटिन्यूस के लिए कर लें तो एज यूर वेल अवेयर कि आपके समेशंस रिप्लेस हो जाएंगे इंटेग्रल से. इफ x is a continuous random variable with a probability density function fx, then the expected value is defined as simply this, x into f of x dx. ठीक है, where the values on both sides are either well defined and not well defined simultaneously. ये साइड well defined होगी तो expected value भी well defined होगी, नहीं होगी तो वो भी नहीं होगी. ठीक है जनाब, so आई होप ये सब रिवीजन आपके लिए एक बड़ी यानी ऐसी चीज़ है जो आपको ऑलरेडी आपके जहन में होगी. ये कोई मुश्किल बात नहीं है, बस सिर्फ मैंने यहाँ तक लाना था कि जब मैं आगे एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ की बात करूँ तो आप अचानक हैरान परेशान ना हो जाएं. बाय द वे ये हैरान होने का बहुत गहरा ताल्लुक है हमारी आज की डिस्कशन से. सो यहाँ तक पहुँच कर वो फॉर्मल सी बातें बस तकरीबन ख़त्म. नाउ विल स्टार्ट हैविंग फन with entropy and we'll start talking about entropy. All right, so what is entropy? सबसे पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशंस दूंगा, उस डेफिनेशंस को हम कुछ इंट्यूटिव अंदाज में लिखेंगे और उसके बाद फिर हम इसकी फर्दर इंट्यूशन में जाना शुरू कर देंगे. ऑलराइट, सो एंट्रोपी इज द वेटेड एवरेज सरप्राइज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल. ओके, सो एक नया वर्ड यहाँ पर आ गया, सरप्राइज, जो बड़ा नॉन साइंटिफिक सा वर्ड है. अभी देखते हैं कि नॉन साइंटिफिक है या नहीं है. अच्छा जी, और इट इज ऑल्सो द एक्सपेक्टेड सरप्राइज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल. अच्छा, कुछ तो समझ में आ रहा है. सो इट्स द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, लेकिन कौन सी एक्सपेक्टेड वैल्यू? द एक्सपेक्टेड सरप्राइज, वट एवर सरप्राइज इज. ठीक है, सो इसको हम यूं भी डिफाइन करते हैं. और अभी मैं ये नहीं चाह रहा कि आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है. अभी बस मैं चाह रहा हूँ कि आपके जहन में सिर्फ ये डेफिनेशंस आ जाएं कि इसकी डेफिनेशंस हैं क्या क्या. ओके, सो इट्स ऑल्सो द एवरेज नंबर ऑफ येस नो क्वेश्चंस required to unambiguously find out the outcome of a random variable. अच्छा, ये बिल्कुल जैसे वो गेम नहीं होती, वो जो कसौटी टाइप की जो गेम होती है जिसमें यू आस्क अ बंच ऑफ क्वेश्चंस एंड इन दिस केस यू कैन जस्ट आस्क अ यस और नो क्वेश्चन, और हर पॉसिबल आउटकम तक पहुंचने के लिए यू नीड अ सर्टेन नंबर ऑफ यस नो क्वेश्चंस. ठीक है, ये शख्सियत इंसान की है या नहीं है, ये शख्सियत कोई जानवर है या नहीं है, जो आप पूछना चाहते हैं वो कोई मशीन है या नहीं है, ये ज़मीन पर है या नहीं है. सो यस नो यस नो यस नो अंटिल यू रीच द आउटकम. सो एज्यूम कि जितने पॉसिबल क्वेश्चन पूछे जा सकते थे उन सब के लिए आपको कितने यस नो क्वेश्चन चाहिए थे, यानी ट्री की हाइट्स सब केस में ऑल पॉसिबल हाइट्स की आप एवरेज ले लें तो ये आपका एवरेज नंबर ऑफ येस नो क्वेश्चंस होंगे टू अनएम्बिगुअसली फाइंड आउट द आउटकम ऑफ अ रैंडम वेरिएबल. इस केस में ऑब्वियसली अब हमने इसको डिस्क्रीट के अंदाज से मैंने यू डिफाइन किया है, तो ये डिस्क्रीट ही फिलहाल इसको आप समझ लें. अच्छा, द एवरेज नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू एनकोड ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम वेरिएबल. ये हम येस नो क्वेश्चन से बिट्स पर आ गए, क्योंकि येस नो क्वेश्चन को बिट कहना बड़ा आसान काम होता है. येस को आप एक आउटकम दे दें, लेट्स से 1, और नो को दूसरी आउटकम दे दें, लेट्स से 0, और अचानक हमारी ये गुफ्तगू जो एंट्रोपी से शुरू हो रही है वो पहले ही 4 लाइनों के अंदर किसी तरह से एनकोडिंग और कंप्रेशन तक पहुंच गई, जिसका बड़ा गहरा आपस में ताल्लुक है, और ये ताल्लुक भी हम एक्सप्लोर करेंगे इससे अगली एक सब्सिक्वेंट वीडियो के अंदर, वेयर आई एक्चुअली शो यू कि व्हाट वी लर्न हियर कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड टू वन वेरी ग्रेट एनकोडिंग स्कीम, और उसकी हम बात करेंगे. तो हम जब समझ चुके होंगे तो साथ साथ उसको भी डिस्कस कर लेंगे.
अच्छा जी, अब इसको लिख लें मैथमेटिकली. सो assume that there is an event A with k possible outcomes, k is equal to 1 to k. ठीक है. The surprise associated with an outcome k is denoted by surprise k. अभी खाली मैंने इसको इनफॉर्मली सरप्राइज लिख दिया है. ठीक है. तो अब किसी इस वेरिएबल इस इवेंट ए के टोटल एक्सपेक्टेड सरप्राइज को आप लिख सकते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड सरप्राइज क्या होगा. वो क्या होगा. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम के पी ए के इज पी के. तो अब आपके पास प्रोबेबिलिटी भी आ गई है, सरप्राइज भी आ गया. तो अब इसकी इन दोनों की मदद से अब आप वो एक्सपेक्टेड वैल्यू लिख सकते हैं. सो द एंट्रोपी ऑफ ए, or which is also written as h of a, is just the expected surprise. So each surprise weighed by the probability of that surprise. So अभी इस पूरी गुफ्तगू में हमें सरप्राइज नहीं समझ में आया. अगरचे हम सरप्राइज की किसी एक सेंस तक ज़रूर पहुंच चुके हैं, लेकिन हमें सरप्राइज अभी नहीं समझ में आया. कोई मसला नहीं आया, अभी समझ में आ जाएगा. बट यहाँ तक हम पहुंच गए हैं कि ये कोई गहरा ताल्लुक है हमारे सरप्राइज का नंबर ऑफ यस नो क्वेश्चंस के साथ. शायद ज़्यादा क्वेश्चंस हो तो चीज़ें ज़्यादा सरप्राइजिंग होती हों, कम क्वेश्चंस हो तो कम होती हों, ये भी हम देखते हैं. But anyhow, now we know how to calculate entropy once we understand how to calculate surprise. ऑल राइट. सो इन इंफॉर्मेशन थ्योरी, क्योंकि ये जो एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट है ना, ये खाली स्टेटिस्टिक्स की तरफ से नहीं आ रहा, ये इन्फॉर्मेशन थ्योरी में भी बहुत गहरा यूज़ हो रहा है. बाय द वे ये एंट्रोपी वो फिजिक्स वाली एंट्रोपी से डिफरेंट है. उससे वो जो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपकी एंट्रोपी है, उससे आपने इसको फिलहाल मिक्स नहीं करना. ऑल्दो के देयर आर वेज टू लुक एट बोथ ऑफ देम एंड फाइंड कॉमनैलिटीज़, लेकिन फिलहाल अभी हम पूरी तरह इन्फॉर्मेशन थ्योरेटिक परस्पेक्टिव ऑफ एंट्रोपी की तरफ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. सो इन इन्फॉर्मेशन थ्योरी द एंट्रोपी ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज द एवरेज लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, सरप्राइज और अनसर्टेनिटी इनहेरेंट इन दी वेरिएबल्स पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है. ये सब बातें एक ही चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रही हैं, एक ही चीज़ की बात कर रही हैं. अब हम यहाँ पर वो जो मिस्ट्री है सरप्राइज की, उसको थोड़ा सा समझते हैं और उसको खोलने की कोशिश करते हैं. तो सरप्राइज की बात हो और आपकी बात ना हो, ये कैसे हो सकता है. So this is basically you at the start of every ML quiz. This is a really funny photo. Actually, this was posted about our course जो है वो किसी जगह पर, and I really loved the post, so मैंने वहाँ से इसको borrow करके और आपकी lecture slides में incorporate कर लिया. So by all means post किया करें हमारे बारे में, तो हम उनको lecture में भी शामिल कर लेते हैं. All right. So now our goal is to somehow quantify surprise, या to quantify amount of information. अब देखिए ना, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं बहुत ज़्यादा. सिमिलरली टू क्वांटिफाई द सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी वी हैव अबाउट अ सर्टेन इवेंट. सो एक एक कदम कर करके चलेंगे हम. ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि एंट्रोपी बहुत यूज़ होती है मशीन लर्निंग में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ज़्यादा बगैर समझे भी यूज़ होती है मशीन लर्निंग के अंदर, कि बस इसको नाम दे दिया जाता है, पूरी तरह समझा नहीं जाता कि ये है क्या. सो व्हाट आवर गोल इज टू रियली अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज. नाउ वी नो दैट व्हाटएवर सरप्राइज इज, हम एवरेज सरप्राइज की बात कर रहे हैं फॉर ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम वेरिएबल. लेकिन अब जरा इसको समझते हैं कि सरप्राइज होता क्या है. सो लेट्स बिल्ड इट स्टेप बाय स्टेप. सो अगर हम इवेंट्स को यानी आउटकम्स को आइसोलेशन में देखें, यहाँ पर हम आउटकम्स को आइसोलेशन में देख रहे हैं. ठीक है. सो विच वन ऑफ दीज वुड बी मोर सरप्राइजिंग. किसी एक चीज़ की ये आउटकम्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर taught about decision trees today. So for example, I taught about, आपको आपके दोस्त ने आकर बताया, आप क्लास में नहीं आए थे, आपने पूछा जी आज सर ने क्या पढ़ाया था, आपने कहा उन्होंने डिसीजन ट्रीज पढ़ाए थे. आप मशीन लर्निंग का कोर्स पढ़ रहे हैं, आप हैरान नहीं हुए. दिस इज नॉट अ बिग डील. ठीक है, पढ़ा दिए डिसीजन ट्रीज. लेकिन आपने पूछा आज टीचर ने क्या पढ़ाया क्लास में, और आप उसने आके कहा आज टीचर जो है वो क्लास में एक अफ्रीकन एलिफेंट लेकर आए थे और क्लास मशीन लर्निंग की है. तो that should be a little bit surprising, right? And that gave you much more information than the information कि जी उन्होंने मशीन लर्निंग ही का एक और टॉपिक पढ़ाया, वर्सेस कि आज उन्होंने जो है वो क्लास के अंदर एक जो है वो आई डोंट नो फैल्कन हैवी के बूस्टर्स किसी तरह से खींच कर ले आए थे क्लास के अंदर. तो मतलब जो चीज़ जितनी ज़्यादा कम प्रोबेबिलिटी वाली होती है, वो शायद उतनी ही ज़्यादा सरप्राइजिंग होती है. ठीक है. यानी आपको क्लास के अंदर एक स्टूडेंट मिल जाए, अगली क्लास में आए तो एक स्टूडेंट मिल जाए जो कि लाहौर का रहने वाला हो, कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है. या आपकी एक स्टूडेंट से मुलाकात हो, वो लेट से कराची का रहने वाला हो, कोई हैरानी की बात नहीं है. आपको एक स्टूडेंट मिल जाए जो लेट से किसी और मुल्क से आपकी क्लास में पढ़ने आया हो, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कल्चर नहीं है दूसरे मुल्कों से आकर पढ़ने का, तो शायद थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो. लेकिन अगर आपको यहाँ पर एक एलियन मिल जाए जो मार्स से आके आपकी क्लास में पढ़ रहा हो, तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग बात होनी चाहिए, एटलीस्ट अभी तो होनी चाहिए. मे बी माई लेक्चर्स विल बिकम आउटडेटेड इन अ फ्यू ईयर्स होपफुली, जब ये बात भी कहें हाँ ये कौन सी बात कर रहे हैं, अब मार्स के एलियंस तो रेगुलरली हमारी क्लास में होते हैं, हो सकता है अभी भी हों आप लोगों में. यार आई डोंट वांट टू गो देयर, बट या लेट्स मूव ऑन. तो यू गेट द आइडिया. लेस प्रोबेबल थिंग्स when they happen they are more surprising.
ओके, सो लो प्रोबेबिलिटी आउटकम्स या लो प्रोबेबिलिटी इवेंट्स आर मोर सरप्राइजिंग, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। अभी तक हम आउटकम्स की बात कर रहे थे, अब हम पूरे इवेंट्स की बात करते हैं। अब हम पूरे यानी जो एक सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं उसकी बात करते हैं। सो विच वन ऑफ दीज आर यू मोर अनसर्टन अबाउट? अब जरा ये सरप्राइज को हम अनसर्टनिटी से इसको एक्सप्लेन करते हैं। वेदर द नेक्स्ट फ्लिप ऑफ अ फेयर कॉइन वुड बी अ हेड, एक ये पॉसिबिलिटी, एक ये इवेंट को सोचिए। दूसरा इवेंट सोचिए, अ बैग कंटेन्स 9 रेड एंड 1 वाइट बॉल, द नेक्स्ट रैंडम ड्रॉ वुड ब्रिंग आउट अ रेड बॉल, ठीक है। अब इन दोनों में से ज्यादा आप सरप्राइज किस में होंगे, ज्यादा आप अनसर्टन किस बारे में? चलो मैं यूं पूछूं तो ये ज्यादा सही है। अपने अब थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करके इस बात पे गौर करें कि एक कॉइन है, फेयर है, मैंने उसको टॉस किया और मैं आपसे पूछता हूँ जी इसकी क्या आउटकम आई होगी, किसके फर्ज करें ये एक इवेंट है, ठीक है। अब आपने अपने आप से पूछा, आपने कहा अच्छा मैं कितना अनसर्टन हूँ इस बारे में। लेट्स से एक दूसरा इवेंट है कि लेट्स से मैंने एक बैग है जिसमें 9 रेड बॉल्स हैं और एक वाइट बॉल है, ठीक है, और मैंने उसको हिला जुला के और उसमें से आंखें बंद करके एक बॉल निकाली है, और अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप बताइए कि इसकी क्या आउटकम होगी, ठीक है। इन दोनों में से किसके बारे में आप ज्यादा अनसर्टन हैं, या यूं कहें कि किसके बारे में आप ज्यादा श्योर हैं कि किधर आउटकम क्या होगी? आई होप कि आपने पॉज किया, थोड़ा गौर किया, आप इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि फेयर कॉइन के केस में आप ज़्यादा अनसर्टन है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है, इट्स फेयर। वेयर एज जो बॉल्स की आउटकम है उसके बारे में आप लेस अनसर्टन है। आपको पता है कि 9 रेड और 1 बॉल है तो मोस्ट प्रॉबेबली रेड ही आई होगी, ठीक है। तो अगर जो आउटकम जब आएगी फेयर कॉइन की तो वो आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन देगी, क्योंकि आप उसके बारे में ज़्यादा कम इंफॉर्मेशन रखते थे, ज़्यादा अनसर्टन थे, ठीक है। तो वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर जाएगी कि उस कॉइन फ्लिप के नतीजे में आपके पास हेड आया या टेल आया, ठीक है। वेराज जो बैग में से जो चीज़ निकली है, मैं उसके बाद में आपको बता दूंगा कौन सी आउटकम आई है, तो वो आउटकम्स ऑन एवरेज, सो 9 पॉसिबल किस्म की आउटकम्स तो वो बॉल्स की हैं, एक पॉसिबल आउटकम जो है वो वाइट बॉल की है, 9 रेड है और 1 वाइट है। जब इसका पूरे का एवरेज लेंगे हम तो ओवरऑल सरप्राइज काफ़ी कम होगा। इसको अभी हम कैलकुलेट भी करके देखेंगे, लेकिन जहां पर आपको पहले से ही पता हो कि किस तरफ आउटकम जा रही है वहां आप ज़्यादा अनसर्टन नहीं होते। इसको एक दो और एग्जाम्पल्स करते हैं, मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। फर्ज कीजिए कि आप एक क्रिकेट मैच में गए हुए हैं और आप वक्त से पहले उठ के आपको जाना पड़ गया, आपकी कॉल आ गई कि जी मिसाल के तौर पे घर में समोसे ठंडे हो रहे हैं, सो वापस आ जाओ फौरन। आपको ये बात जो है वो शायद हो सकता है इतनी अर्जेंट ना लग रही हो, लेकिन कभी कभी होती भी है। सो एनी हाउ, सो आप गेम छोड़कर आ गए और आप अपने घर चले गए, ठीक है। अब आपने बाद में अपने एक दोस्त से पूछना है कि मैच का क्या बना। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि आप ज़्यादा सस्पेंस में किस सूरत में होंगे? अगर दोनों टीमें इक्वली लाइकली हैं जीतने की, यानी आपने मिसाल के तौर पर ऐसे कंडीशन में मैच छोड़कर गए हैं कि आई डोंट नो एक बॉल रहती है और उस पर या एक ओवर रहता है और उसमें 6 रन चाहिए, उस वक्त आप ज़्यादा अनसर्टन होंगे इस कंडीशन के बारे में, या आप उस वक्त ज़्यादा अनसर्टन होंगे कि अभी 100 रन बनाने पड़े हुए, एक आखिरी प्लेयर रह गया है और आखिरी ओवर है, या चले आखिरी ओवर से इससे थोड़ा कम बुरा कर देते हैं, पॉसिबल कर देते हैं एटलीस्ट 100 रन बनाने वाले रह गए हैं, कोई 120 बॉल्स रह गई हैं और एक प्लेयर रह गया खाली। इस केस में आप ज़्यादा अनसर्टन होंगे। अब ज़रा अपने आप से सोच पूछिए कि अगर आप मैच को क्लियरली जीता हुआ छोड़कर जा रहे हैं या मैच फंसा हुआ है, दोनों में से कौन से केस में आप ज़्यादा अनसर्टन है, किसमें ज़्यादा सस्पेंस है, किसमें ज़्यादा सरप्राइज है किसके आउटकम्स के अंदर? तब जबकि मैच फंसा हुआ है, राइट। जब सारी आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं, जीतना भी उतना ही लाइकली है जितना हारना लाइकली है, इस केस में ज़्यादा सस्पेंस है, ज़्यादा सरप्राइज है, ज़्यादा अनसर्टनिटी है, और जब इसकी आउटकम आपको पता लगेगी तो आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। वेरएज जिस केस में ऑलरेडी तय हो चुका है, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, बड़ा क्लियर है कि ये तो हम जीत ही जाएंगे, तो उस केस में हाँ वो आउटकम, वो एक आइसोलेटेड आउटकम आपको बहुत सरप्राइज करेगी अगर उस केस में आप हार गए। यानी वो जो एक प्लेयर ने 120 बॉलों में 100 रन बना लिए, दैट इज अ वेरी आइसोलेटेड एंड वेरी सरप्राइजिंग आउटकम, बट दैट्स वन सरप्राइजिंग आउटकम। अगर आप एवरेज लेंगे ओवर ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितनी इन्फिनिट आउटकम्स इसकी हो सकती हैं, जितनी जितनी किस्म के तरीकों से आप जीत सकते हैं, तो उसमें ये एवरेज आउट हो जाएगा। और जो मैं इंट्यूशन आपको देना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस केस में आप कोई इतने आम तौर पर सरप्राइज नहीं होंगे, क्योंकि आम तौर पे आप जीत ही जाएंगे। बहुत कम चांस है, विद लो प्रोबेबिलिटी है कि आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज होंगे। सो विद अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी यू विल बी वेरी सरप्राइज, विद अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी यू विल नॉट बी सरप्राइज। ठीक है जनाब, क्लियर हो रहा है, ये बात कुछ समझ में आ रही है? सो अभी अभी खाली इंट्यूशन का लेवल है, अभी हम इसको बिल्कुल क्रिस्प और मैथमेटिकल कर देंगे थोड़ी देर में, ठीक है। सो हमने यहाँ से क्या सीखा?
ऐसे इवेंट्स जिनकी सारी आउटकम्स इक्वली प्रोबेबल होती हैं, वो इवेंट्स के बारे में हम ज़्यादा अनसर्टन होते हैं। वो इवेंट्स जिसमें कुछ आउटकम्स बहुत प्रोबेबल होती हैं और कुछ बहुत इम्प्रॉबेबल होती हैं, उसके बारे में हम कम अनसर्टन होते हैं और उसकी आउटकम्स आमतौर पे हमें बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं करती। ठीक है, मिसाल के तौर पे कल सुबह सूरज निकलेगा और वो मशरिक से ही निकलेगा, तो ये चीज़ हमें कोई इतनी सरप्राइज नहीं करती, क्योंकि रोज़ाना मशरिक से ही निकलता है और आप उठते हैं तो निकल आता है मशरिक से। ठीक है, हाँ, वो एक दिन जिस दिन वो अगर मगरिब से निकल आए, वो दिन आपको बहुत सरप्राइज करेगा, बट डिवाइड दैट ओवरऑल बाय द एंटायर लाइफ ऑफ द यूनिवर्स, या अपनी अर्थ की जितनी हमारा लाइफ टाइम जब से हम घूम रहे हैं अपने एक्सेस के ऊपर, इस पूरे के ऊपर अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो ये सरप्राइज बड़ा रिड्यूस हो जाएगा। उस एक दिन के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इन्फिनिट सरप्राइज होगा। ये भी जब आप एंट्रोपी सीख लेंगे तो आपको निकालना आ जाएगा। अच्छा जी, so a system where all possible outcomes are equally likely makes us more uncertain on average compared to a system with a clearly skewed probability distribution. तो इस स्लाइड पे हमने दो चीज़ें सीखी हैं और मैंने कोशिश की है कि मैं दोनों को अलग कर दूं। कुछ आउटकम्स में अगर हम इंडिविजुअल आउटकम्स की बात करें तो लो प्रोबेबिलिटी आउटकम्स ज़्यादा सरप्राइजिंग होती हैं। ठीक है, जबकि अगर हम पूरे पूरे इवेंट्स की बात करें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें, तो वहाँ पर ऐसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस जहाँ सारी आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं, वो ज़्यादा सरप्राइजिंग होती हैं, वो ज़्यादा अनसर्टन होते हैं हम उसके बारे में। जहाँ कुछ बहुत लाइकली होती हैं और कुछ बहुत अनलाइकली होती हैं, उसके बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी ये इल्म रखते होते हैं हाई प्रोबेबिलिटी से कि ये काम तो इसी तरह हो ही जाएगा, तो लिहाजा ना हमारा उसके बारे में कोई इतना सस्पेंस होता है और ना हमारा उसके बारे में कोई इतनी वो होती। मिसाल के तौर पर आप किसी को बिल जमा करवाने के लिए भेजें और वो बिल जमा करवा कर आ जाए सक्सेसफुली, तो आप हैरान हो कि थोड़ी कहेंगे हैं तुमने बिल जमा करा दिया। लेकिन अगर आप किसी को मिसाल के तौर पर आई डोंट नो वो जो होता है ना महावराती तारे तोड़ने के लिए भेजें और वो तोड़ के ले आए व्हाटएवर दैट मीन्स, तो काफ़ी सरप्राइज आपको होना चाहिए, प्लीज़ हो जाइएगा। उस बेचारे ने बड़ी मेहनत की होगी, बट एनी हाउ, बेचारा या बेचारी, सुन, बीइंग वेरी न्यूट्रल हियर। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। So now we are ready to quantify information. So quantifying information is the foundation of the field of information theory. Obviously उसके नाम में information है तो it should be central. The intuition behind quantifying information is the idea of measuring how much surprise there is in an event. ठीक है, those events that are rare, low probability, are more surprising in isolation obviously, and therefore have more information than those events which are common, which have high probability. ठीक है, so low probability event high information या high surprise, high probability event low information unsurprising. ठीक है, low surprise. All right, so the basic intuition behind information theory is that learning that an unlikely event has occurred is more informative than learning that a likely event has occurred. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अब आगे चलते हैं. So rare events are more uncertain or more surprising and require more information to represent them than common events. अभी representation की बात आना शुरू हो गई है, वो जो bits की और yes no questions की बात हो रही थी. ठीक है, all right. Therefore the amount of information or surprise associated with an event seems to be, यहाँ ये बहुत ज़रूरी, seems to be inversely proportional to its probability. कुछ ऐसा relation लग रहा है हमें. Information of x is inversely proportional to the probability of x, या आप इसकी जगह आप कह सकते हैं surprise of x seems to be inversely proportional to the probability of x. ऐसे ही लग रहा है ना, यानी कम probability event है, बहुत ज़्यादा surprise है, हाई probability event है, बहुत लो surprise है. ठीक है, लेकिन अब क्या ये वाकई यहाँ पे equal to लगा हुआ है या ये भी proportionality है और इसको कुछ और करना पड़ेगा, इसकी थोड़ी सी बात करते हैं. So ये रिलेशन को अगर हम इक्वल टू लगाकर लिख दें, इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू या सरप्राइज इज इक्वल टू 1 ओवर द प्रोबेबिलिटी, तो उसमें कुछ थोड़े से हमें मसले आते हैं. ठीक है, वो मसले वैसे इससे ज़्यादा कह रहे हैं जितने मैं इस स्लाइड में आपको समझा पाऊंगा, लेकिन थोड़ा आगे जाकर आपको बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि मैं इसकी जगह जो एक डिफरेंट स्केल अपनाने लगा हूँ. आपको नज़र आ रहा है ना कि मैं ये नहीं यूज़ करूँगा. अब इतने तो आप लेक्चर मेरे सुन चुके हैं कि जब इस तरह हम कहानी बना रहे होते हैं तो उसका मतलब होता है कि ये अच्छा नहीं है तो कोई इससे बेहतर है. ठीक है, तो बट हाउएवर वो जो इससे बेहतर है उसके लाने की जो असल दलील है वो आगे एक और स्लाइड में आएगी जहां पर आप पूरी तरह से उस पर इंशाल्लाह कायल हो जाएंगे. बट फॉर नाउ let's use this argument. So this using this as a relationship, और यहाँ पे इक्वल टू लगाने में क्या प्रॉब्लम है? वो प्रॉब्लम ये है कि इन दिस रॉ फॉर्म इट वेरीज बिटवीन इन्फिनिट, यानी फॉर पी एक्स इज इक्वल टू 0, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो है वो 0 होगी तो सरप्राइज इन्फिनिट होगा, एंड फॉर 1
which is the highest probability on a probability scale. अगर किसी चीज़ की probability 1 है तो उसकी जो सरप्राइज है वो भी 1 होगा। तो यहाँ हम बस ये कह रहे हैं कि हमारा सरप्राइज बहुत बड़ी एक स्केल के ऊपर है, वो इन्फिनिट से लेकर 1 के बीच में वेरी कर रहा है, और ये हमें कोई 1 भी कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा। हम चाहते हैं कि जो चीज़ बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है उसका सरप्राइज 0 होना चाहिए। अभी फिलहाल हमें ये एक प्रॉब्लम नजर आ रही है, ठीक है। सो सपोज वी हैव अ बाइस्ड कॉइन दैट ऑलमोस्ट ऑलवेज गिव्स हेड्स। एक ऐसा कॉइन है जैसे आप जब भी फ्लिप करते हैं हेड आता है, ठीक है। कोई 0.0000000001 कोई प्रोबेबिलिटी होगी इसमें टेल्स आने की, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू टेल्स is very surprising, so the surprise should be very high. The probability of x is equal to heads is not surprising, so the surprise should be close to 0. ठीक है, ये हम चाह रहे हैं इस मौके पर। तो अभी हमने अगर 1 over probability से इसको इनकोड किया, बाय द वे कुछ डायग्राम्स मैंने यहाँ से दी हुई हैं नीचे इस सोर्स से, so just making it very clear. तो ये अगर हम इसको सिंपली इस तरह से यूज कर लें तो प्रोबेबिलिटी और सरप्राइज का रिलेशनशिप इस किस्म का बन रहा है, और ये 1 की मिनिमम वैल्यू ये ले रही है फॉर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, और ये ये इन्फिनिटी की वैल्यू ले रही है फॉर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0. सो द सरप्राइज ऑफ x इज इक्वल टू टेल्स इज 1 over 0 infinity, which is okay, but surprise of x is equal to heads is 1 over 1 is equal to 1, which we don't like that a lot. अब आप यहाँ ये कह सकते हैं कि यार कम तो है ना, क्या टेंशन है इसमें। तो yes, I would agree, तो इतना बड़ा यहाँ मसला नज़र नहीं आ रहा। वो जो बड़ा मसला आर्ग्यूमेंट जो होगा, जैसे मैंने कहा, वो मैं आपको आगे जाकर दूंगा। अभी कच्चे आर्ग्यूमेंट से अपने आप को फिलहाल कायल कर लें और एक दो स्लाइड्स के लिए सब्र कर लें। अच्छा, सो नाउ ब्रिंगिंग इन दी एक्टर्स जिसके लिए ये सारे का सारा सीन बनाया जा रहा था, और वो क्या है, इफ़ वी स्केल इट डिफरेंटली एंड यूज सरप्राइज इक्वल टू लॉग ओवर लॉग ऑफ 1 over p of x, यानी हम इसमें बजाय सिंपल रॉ यूज़ करने के हम इसकी जगह इसके लॉगरिथमिक स्केल में ले जाएं और लॉग नीचे चला जाएगा उसके पास, तो log of p of x बन जाएगा ये। तो क्या होगा अगर हम log का स्केल यूज कर लें? सो नाउ we find that x is equal to tails, जो कि obviously एक ऐसी आउटकम थी जो कि नहीं आनी थी, हमने यहाँ जीरो ही कर दिया बाय द वे, तो ये ऑलमोस्ट को यहाँ से एज्यूम करें कि खत्म हो गया, ठीक है, तो मैं जीरो ही एज्यूम कर रहा हूँ इसको। सो सरप्राइज of x is equal to tails is log 1 over 0, which is undefined, which is fine. So it's the surprise is undefined, लेकिन जब हम इसको ड्रॉ करेंगे ना तो ये undefined बहुत हाई के ऊपर जाकर हमारे पास आया होगा। अभी हम इसको ड्रॉ करते हैं, लेकिन the surprise of x is equal to heads is equal to 0. So वो जो हम जीरो के लिए बहुत हमें मसला हो रहा था ना, वो अब हमें मिल गया है, ठीक है। So this is now the new scale. So here we have for probability 1, the surprise is 0, and for probability 0 the surprise is undefined. However, उससे बिल्कुल पहले उसके 0 होने से बिल्कुल पहले ये बहुत हाई की तरफ जा रहा था. So a lot of surprise for low probability events, no surprise फॉर हाई प्रोबेबिलिटी इवेंट्स, ठीक है। अभी इस आर्ग्यूमेंट से अपने आप को लॉग पे कायल करें, लॉग की बड़ी प्रिसाइज रीजन है, वो मैं अभी आपको एक और एग्जांपल में आगे जाकर दिखाऊंगा। अच्छा जनाब, सो नाउ we have basically quantified surprise. We have defined surprise as log 1 over the probability of this event x. So this is the now our measure of surprise. ये अच्छा है या बुरा, इसको अभी हम देखते हैं, और ये log की बेस क्या है ये भी अभी हम देखते हैं। अभी हमने डिफाइन नहीं किया इसको यहाँ पर। अच्छा जनाब, पहले इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लें, थोड़ा अपने दिल को कायल कर लें। लॉग की बेस को 2 पे फिक्स करते हैं और 2 पे फिक्स करके इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सपोज वी हैव अ बाइस्ड कॉइन जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स 0.9 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स जो है 0.1 है, और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, हमारे जो आउटकम्स हैं वो हेड्स और टेल्स हो गए, और हम साथ साथ सरप्राइज भी निकाल लेते हैं। सो द सरप्राइज एसोसिएटेड विद दिस इवेंट इज 1 over log base 2, हमने 2 पे फिक्स कर दिया। इसको हम किसी पे भी रख सकते थे और वो अलग अलग किस्म की एंट्रोपीज बन जाती हैं, लेकिन 2 पे फिक्स करेंगे तो 0.15 is associated with the heads and 3.32 is the surprise associated with the tails. अच्छा, तो अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सपोज हम ऐसा करते हैं कि हमने 100 कॉइन फ्लिप्स किए, ये जरूरी नहीं था बाय द वे 100 करना, मैं वैसे ही आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सो फर्ज कीजिए आपने 100 कॉइन फ्लिप्स किए, सो आप कितने हेड्स एक्सपेक्ट करेंगे? इतने हेड्स एक्सपेक्ट करेंगे और इतनी टेल्स एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। सो द टोटल सरप्राइज ऑफ दिस एंटायर आउटकम would be 0.9 into the surprise into 100 outcomes plus 0.1 into 100 outcomes into this 3.32, which is the surprise associated with this probability, ठीक है। और एवरेज सरप्राइज अगर हम पूरा निकालेंगे वेटेड एवरेज से, तो हम वो हमारे पास इसमें से ये 100, ये वाला 100 ऊपर वाला कॉमन आ जाएगा, तो बीच में से निकल जाएगा, इसकी कोई अहमियत ही नहीं थी। तो खाली हमें ज़रूरत बस इतने की थी, इन 4 चीज़ों की ज़रूरत थी जो हम पहले ही फॉर्मूला में एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ के देखा है। सो probability multiplied by surprise, probability multiplied by surprise, sum किया, so the total surprise of this event
associated with this random variable x is 0.467. अच्छा, अब ये था clearly biased case जिसमें हमें पहले ही पता था कि हेड्स ही आना है, टेल्स की कोई इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम एक फेयर कॉइन लेते तब हम कितना सरप्राइज होते, इसकी एवरेज सरप्राइज हमारा कितना होता, और वो हमारे, अगर हमारी ये पूरी कैलकुलेशंस ठीक है एंट्रोपी की, तो वो ज़्यादा होना चाहिए। ऑलराइट, सो अच्छा, तो बाय द वे ये फॉर्मूला एक दफ़ा दोबारा यहाँ पर आ गया। द एक्सपेक्टेड सरप्राइज इज एच x is just summation p x equal to x into log base 2 of 1 over x is equal to x, ठीक है। बाय द वे आप इसको यूं भी लिखा हुआ देखेंगे कि ये बाज़ दफ़ा ना यहाँ नेगेटिव साइन आ जाता है, तो इस लॉग को हम ऊपर ले आया करते हैं, जब लॉग को ऊपर लाते हैं तो नेगेटिव साइन आ जाता है और उसको हम समेशन से बाहर जाके लिख देते हैं। दैट्स अ मोर स्टैंडर्ड वे टू राइट इट, वो मैं आगे जाके आपको दिखा भी दूंगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स टेक एन अनबाइस्ड कॉइन। इस केस में हेड्स की ये प्रोबेबिलिटी है, टेल्स की ये है, और दोनों का जिस वक्त हम लॉग बेस 2 करके इनवर्स लेते हैं तो 1 और 1 आ जाता है, एंड नाउ द एंट्रोपी कम्स आउट टू बी 1। वेरी सरप्राइजिंग। So because all outcomes were equally likely, so we were highly surprised, ठीक है। अब ज़रा थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर आपको याद दिलाऊं, ये एंट्रोपी की गुफ्तगू हमारे पास ट्रीज़ में आई कहाँ से थी, जहाँ से हमने एंट्रोपी डिस्कस करना शुरू की थी और एंट्रोपी की बातचीत शुरू हुई थी। एंट्रोपी की डिस्कशन आई थी जहाँ पर हम इवेंट्स को प्योर और अनप्योर कह रहे थे, प्योर और इम्प्योर कह रहे थे, एक ही किस्म के या सब किस्म के। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये देखा था कि प्योर आउटकम्स जो होती हैं उनके केस में एंट्रोपी आपकी बहुत लो होती है, और इम्प्योर आउटकम्स में एंट्रोपी आपकी बहुत हाई होती है। और वही बात अब यहाँ दूसरे अंदाज से कह रहे हैं, ये है आपका इम्प्योर केस, हाईएस्ट इम्प्योरिटी, सारी आउटकम्स इक्वली लाइकली। ये है बहुत प्योर केस जहाँ पे एक आउटकम इज वेरी highly likely compared to other outcomes, and you can see here low entropy and very high entropy। तो वो वाला अंदाज वहां पर जरूरत थी उसकी, लेकिन असल अंदाज जहां से हम बोरो करके वो सारी थ्योरी ला रहे थे वो ये थी कि the events where all outcomes are equally likely are on average more surprising for us. The events where some outcomes are much more likely compared to other outcomes, we do not have a very high amount of overall surprise। इसकी ना हमने कुछ और एग्जांपल्स भी आगे करेंगे जिससे आप इस पे कायल हो जाएंगे। जैसे पूरी दुनिया के अंदर हम हर इंसान के पास जाएं, उससे पूछेंगे इंसानों के एलियन हो, इंसानों के एलियन हो, और उसमें से एक इंसान निकल आए, तो सॉरी I apologize, that was a real mistake। I did not intend to imply कि दुनिया में इंसान बहुत कम है, लेकिन मैं कहना ही चाह रहा था उनमें से एक एलियन निकल आए। So एक एलियन निकल आए तो अगरचे इन इटसेल्फ ये बहुत सरप्राइजिंग इवेंट है, लेकिन ओवरऑल एवरेज करके ये बहुत लो सरप्राइज हमारे लिए लाएगा एवरेज सरप्राइज के तौर पे, क्योंकि इतने सारे इंसानों पे डिवाइड हो जाएगा ना ये सब कुछ। जबकि अगर जो आधे इंसान और आधे एलियन निकल आए तो देन द ओवरऑल सरप्राइज वुड बी मच मच हायर, ठीक है। तो यानी इट्स इक्वल प्रोबेबिलिटी के इंसान कितने और एलियन कितने, ठीक है। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं, इसको मजीद अब समझते हैं। मैं यानी अगर आपको यहाँ तक होपफुली सब समझ आ रहा है ना, तो अगली एग्जांपल आपको हर चीज़ इंशाल्लाह बिल्कुल क्रिस्टल कर देगी। All right, so information, we can calculate the amount of information there is in an event using the probability of the event. So this is also known as the Shannon information or self information or simply the information, and can be calculated for a discrete event x as follows, ठीक है। ये हम इससे पहले देख कर आए, information या surprise of x is equal to log कोई भी log की बेस हो सकती है, लेकिन खैर हम यहाँ पर अभी 2 देख कर आए, so log 1 over probability of x, या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं माइनस log p of x, ठीक है। अगर log की बेस 2 है तो हम इसको तो हम इसके लिए जो क्या कहते हैं यूनिट्स यूज़ करते हैं वो बिट्स हैं। अगर लॉग की बेस कोई और है, मिसाल के तौर पर अगर नेचुरल लॉग है, तो तब हम इसके केस में जो यूनिट यूज़ करते हैं उसको हम निट्स कहते हैं या नेचुरल डिजिट्स कहते हैं, ठीक है। अभी मैं आगे बात करते हैं। सो यहाँ पर लेकिन ये हमने बेस 2 एज्यूम किया था, ये कहीं भी बिल्कुल ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि लॉग बेस 2 यहाँ पर होना ज़रूरी है। So base 2 logarithm means that the units of information measured is in bits, binary digits. If we use the base e, natural log, then the units of information are known as natural digits, so nits, ठीक है। सो बिट्स नेट्स आपको ये सारे नजर आएंगे मेजर करने के लिए। अपने जहन में रखने की जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि लॉग का स्केल हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल है, और वो लॉग बेस 2 से किस तरह जुड़ा हुआ है, वो येस नो क्वेश्चंस की वजह से जुड़ा हुआ है, वो अभी हम उसकी बात करते हैं कि किस तरह जुड़ा हुआ है। ट्रीज में अभी जो कुछ हमने पढ़ा था ना, वो सब बड़ा एक डीपली लिंक्ड है इस सब गुफ्तगू के साथ। अच्छा जनाब, ये वो एग्जाम्पल है जिसके लिए मैं आपको रोक रहा था, ये खान अकेडमी की एग्जाम्पल है। आई रियली लव दिस एग्जाम्पल, एंड दिस ऑल्सो मेक्स आवर वे, पेव्स आवर वे फॉर
द डिस्कशन ऑफ द हफमैन कोड्स, जिसकी बात हमने आगे जाकर करनी है एक अलग डिस्कशन के अंदर। अच्छा जी, सो अनसर्टेनिटी एंड इन्फॉर्मेशन। सो अ मशीन इज जनरेटिंग 4 सिंबल्स एज्यूम, और ये बाय द वे मैं ये वीडियो हाईली रिकमेंड करूंगा, बड़ी अच्छी बनी हुई है, ये ज़रूर देख लीजिएगा, ऐसी चीज़ें ज़रूर कर लिया करें, बट मैं खाली उसको समराइज यहाँ पर कर रहा हूँ। सो मशीन इज जनरेटिंग 4 सिंबल्स A, B, C and D रेंडमली विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है। पी के इज इक्वल टू 1/4 या 0.25 फॉर ऑल के, ठीक हो गया। सो हर सिंबल की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, मशीन से अगला सिंबल जो निकलेगा वो इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि ए निकलेगा या बी निकलेगा या सी निकलेगा या डी निकलेगा, ठीक है। हमारे पास एक दूसरी मशीन भी है, इट इज ऑल्सो जनरेटिंग दीज 4 सिंबल्स A, B, C and D बट विद अ डिफरेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हियर द प्रोबेबिलिटी ऑफ A is 0.5, द प्रोबेबिलिटी ऑफ B is 0.125, प्रोबेबिलिटी ऑफ C is 0.125 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ D is 0.25, ठीक है। सो आधा प्रोबेबिलिटी का जो मैस है वो जा रहा है ए के पास, बाकी जो आधा बचा है उसमें से आधा जा रहा है डी के पास, और जो बाकी आधा बचा है उसमें से आधा आधा जा रहा है इन दो के पास, ठीक है। सो इट्स क्लियरली जनरेटिंग मोर एज एंड देन नेक्स्ट डीज एंड देन बीज एंड सीज विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। अच्छा जनाब, सो नाउ आवर क्वेश्चन इज विच मशीन इज जनरेटिंग मोर इंफॉर्मेशन, या इन अदर वर्ड्स किस मशीन की नेक्स्ट, यानी फर्ज करें मैं इससे एक चीज़ जनरेट करवाता हूँ, एक सिंबल जनरेट कराता हूँ, आपसे छुपा लेता हूँ और आपसे कहता हूँ मशीन 1 है, बताइए क्या सिंबल होगा, या मशीन 2 है, बताइए क्या सिंबल होगा। किस केस में आप ज़्यादा अनसर्टेन हैं? मशीन 1 के केस में अगर मैं आपको गेस करने को कहूँ, एक इंटेलिजेंट गेस, तो क्या आप ज़्यादा श्योर हैं कि आपका गेस सही होगा, या मशीन 2 के केस में आप ज़्यादा श्योर हैं कि आपका गेस ज़्यादा सही होगा? अब जो कुछ अब तक हम पढ़ाए हैं, आपका जवाब बड़ा क्लियर होना चाहिए, मुझे उसके देने की भी ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, सो व्हेन अ सिंबल इज रिलीज विच मशीन डिक्रीजेज आर अनसर्टेनिटी द मोस्ट, किस मशीन के केस में सिंबल रिलीज होने पर सबसे ज़्यादा हमारी अनसर्टेनिटी डिक्रीज होती है, किसकी, या इन अदर वर्ड्स हम किसके बारे में ज़्यादा अनसर्टेन थे। अच्छा जनाब, सो विच मशीन इज़ मोर सरप्राइजिंग ऑन एवरेज, ये मुख्तलिफ अंदाज से मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये सब अंदाज से आप इस एंट्रोपी के बारे में गुफ्तगू सुनेंगे। So let's try to quantify surprise by the average number of yes no questions that can lead us to the outcome। अब ये हम दूसरे अंदाज से देख लेंगे, जिसमें मैंने कहा था ना आपको लॉग वाली बात भी पूरी तरह समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब yes no questions की तरफ से आते हैं इसकी तरफ। अच्छा जनाब, rephrasing, if you have to predict the next symbol for each machine, what is the minimum number of yes no questions you would expect to ask? अच्छा, अब मैं आपसे चाह रहा हूँ आप ट्री बनाएं, मेरे पास मैंने सिंबल निकाला है और मैंने छुपा के, मुझे नज़र आ रहा है, आपको नज़र नहीं आ रहा। मशीन 1 के केस में आपको yes no questions पूछने की इजाज़त है। yes no questions पूछें ऐसे जिसके जवाब में मैं आपको जवाब उसका दूंगा आपको, और उसका ट्री बनाते जाएं यहाँ तक कि आपको सर्टेनली अनएम्बिगुअसली पता लग जाए कि मेरे पास कौन सा सिंबल छुपा हुआ है, ठीक है। ये कोशिश करें वीडियो पॉज करके ना, पहले खुद बना लें, पहले मशीन 1 के लिए बनाएं, बहुत आसान है इसके लिए। अच्छा जनाब, मशीन 1, दिस इज द ट्री। आप एक सवाल कर सकते थे, और ये इस तरह के और ट्रीज भी बन सकते थे, बट वन वे टू कंस्ट्रक्ट द ट्री इज इट ए बी? इफ इट इज यस, देन इसका मतलब है कि इधर ए बी होने के चांसेस हैं और इधर सी डी होने के चांसेस हैं, ठीक है। एंड देन यू आस्क अनदर क्वेश्चन, इज इट ए? अगर इधर आ गए तो ये क्लियरली ए है, अगर इधर चले गए तो क्लियरली बी है, इधर आ गए तो क्लियरली सी है, और इधर आ गए तो क्लियरली डी है। सो दो क्वेश्चंस में ऑन एवरेज यू आर एबल टू अनएम्बिगुअसली रीच कि आपके पास सिंबल कौन सा था जो जनरेट हुआ था फॉर मशीन 1। बाय द वे वी कैन डू द सेम फॉर मशीन 2, it's perfectly fine to do the same for machine 2, however that won't be the most efficient tree, that won't be the best tree for machine 2, ठीक है। ये अभी हम देखते हैं, ठीक है। so 2 questions per symbol या 2 bits per symbol इसको इनकोड करने के लिए, ठीक है। so अगर मैं मशीन 2 की बात करूं तो this is a better tree। यहां पर क्या हो रहा है, because A is the most probable symbol, why not simply ask about A first? So अगर आप A के बारे में पूछें is it A, तो एक क्वेश्चन में पता लग जाएगा कि ये A है या नहीं, and 50% of time because the machine would be generating A, so we would be correct very frequently, at least 50% of time. Next we ask about the next most frequent symbol, and then in the remaining 50%, 25% of time we would be true। दो क्वेश्चन से हम यहाँ पहुंच जाएंगे, and then these least frequent ones which जिनकी टोटल प्रोबेबिलिटी मैच जो हमारे पास था वो 0.25 था, यानी 25% ऑफ टाइम वो बी या सी होंगे, और उसमें से आप एक क्वेश्चन करके आप बी या सी तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो इन लो प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ों के लिए आप 3 सवाल पूछेंगे, इन निस्बतन लो के लिए 2 पूछेंगे, और इस वेरी हाई प्रोबेबिलिटी इवेंट के लिए आप 1 सवाल पूछेंगे, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर इसकी एवरेज नंबर ऑफ बिट्स निकालूं या एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालूं, तो आई फाइंड कि इट इज़ 1.75 बिट्स। Wow. Okay, something has happened here. Suddenly, our knowledge of entropy has taken on a very, very concrete shape.
यानी आप यहाँ भी देख सकते हैं कि मशीन 1 में ऑल आउटकम्स इक्वली लाइकली थी, लिहाजा उसकी एंट्रोपी ज़्यादा थी। मशीन 2 में एक स्क्यू था डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, देयरफॉर उसकी एंट्रोपी लो है। बट नाउ दिस एंट्रोपी हैज टेकन ऑन अ फॉर्म व्हिच इज काइंड ऑफ टेलिंग अस कि ये मिनिमम कितने बिट्स में एनकोड हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल, टू प्रेडिक्ट 100 symbols, machine 1 requires 200 questions, whereas machine 2 requires 175 questions. ये तो कुछ ऐसा लग रहा है कि हम डॉक्यूमेंट्स को कंप्रेस कर रहे हैं। एग्जैक्टली कर रहे हैं, अभी करेंगे थोड़ी देर में, इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। ओके, सो मशीन 1 produces more information on average as it reduces on average uncertainty, on average uncertainty and surprise. So it reduces more surprise, more uncertainty on average, because हम उसके आउटकम्स के बारे में ज़्यादा अनश्योर थे। ठीक है, जबकि हम मशीन 2 के केस में पहले ही से श्योर थे, हमें पहले ही से काफ़ी अंदाज़ा था कि यार इसने ए ही जनरेट करना है। अच्छा नहीं किया, चलो फिर इसने डी ही जनरेट करना है। नहीं किया, अच्छा चलो फिर इन थोड़े से केसेस के अंदर इसने सी या बी जनरेट करना है। ठीक है, ऑलराइट। सो अब हम उस आखिरी लिंक को जोड़ लेते हैं। याद है हाइट ऑफ द ट्री, वो जो हमने एक लेक्चर था जिसको सप्लीमेंट्री हमने बना दिया था, जिसके अंदर हमने ट्री के वेरियस रिलेशनशिप्स की बात की थी। सो वहाँ से अगर आपको याद हो, देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ लीफ नोड्स and the height of the tree. By the way, number of leaf nodes का total internal nodes के साथ relationship था, वो आपको याद होगा। तो इससे आप बड़ी easily you can reach a relationship between the height of the tree and the number of leaf nodes. ठीक है, so the height of the tree is approximately equal to log base 2 of the number of leaf nodes. ठीक है, सो अब अगर आप पिछली वाली एग्जांपल में देखें, सो द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि बेसिकली यहाँ से आ रहे हैं, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन। सो द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज इक्वल टू, यानी हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू लॉग बेस 2 ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये आउटकम्स हैं आपकी, ये आपकी ट्री की आउटकम्स हैं। ठीक है, सो इनका जो लॉग है वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी हाइट ऑफ द ट्री के इक्वल है। इस वजह से द नंबर ऑफ बिट्स इज इक्वल टू log base 2 of k. K is your total possible outcomes, यानी पिछले वाली एग्जांपल में 4 थी, और the number of bits required to encode this tree is basically log base 2 of k. ठीक है, सो अब हम इसको डायरेक्टली फिट कर सकते हैं। when all outcomes k among k possible outcomes are equally probable, then the pk is equal to 1 over k, और k is equal to 1 over pk. ठीक है, so therefore bits, the number of bits required to encode the outcome k is log base 2 of 1 over pk. ठीक है, तो ये हमारे पास डायरेक्टली एक रिलेशनशिप बन गया नंबर ऑफ बिट्स का या नंबर ऑफ क्वेश्चंस का हमारी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स के साथ, जो कि हमारी के पॉसिबल आउटकम्स हैं। सो नाउ द टोटल एक्सपेक्टेड सरप्राइज अक्रॉस ऑल आउटकम्स वेटेड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच outcome is simply k is equal to 1 to k pk into log base 2 of 1 over pk. So basically this is just कि हम इसकी probability क्या है, और ये कह रहा है कि इसके लिए मुझे questions कितने पूछने पड़ेंगे। तो ये सारा आपने ज्ञान, इसके लिए बिट्स कितनी चाहिए होंगी इनकोड करने के लिए, या इसका सरप्राइज कितना है। अब आपको समझ में आया कि मैं बार बार सरप्राइज, अनसर्टेनिटी, इंफॉर्मेशन, बिट्स और क्वेश्चंस इन 5 चीज़ों का जिक्र क्यों कर रहा था, बिकॉज हैविंग अ पर्सपेक्टिव ऑन ऑल ऑफ देम रियली गिव्स यू अ वेरी थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एंट्रोपी इज एंड हाउ इट इज़ यूज्ड। और अब आपको जब वो जो क्रॉस एंट्रोपी यूज़ हुई थी ना न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर, या क्रॉस एंट्रोपी यूज़ होती है जो हम लॉस फंक्शन यूज़ करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर, वो आपको होपफुली अब बहुत बेहतर अंदाज में समझ आएगी। अभी हम थोड़ी सी बात उसकी भी और करेंगे। ठीक है, बट होपफुली नाउ यू आर एट अ स्टेट वे यू रियली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसी को हम जो है वो लॉग में ये पीके को ऊपर ले आते हैं, तो ये इसको इस तरह भी लिख लेते हैं। दोनों इसके स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, आपको ये दोनों में लिखा हुआ मिलेगा। सो द एंट्रोपी इज द टोटल सरप्राइज अक्रॉस ऑल आउटकम्स वेटेड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम। ठीक है, आई होप एट दिस पॉइंट एवरीथिंग इज क्रिस्टल। अच्छा जनाब, सो एंट्रोपी इज द हाईएस्ट फॉर अ सिस्टम वेयर ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। बस क्विक सी एक रिवीजन है, योर टीम विनिंग अ मैच दैट इज स्टक टिल द लास्ट मिनट। एंट्रोपी इज लो व्हेन सम आउटकम इज मोर लाइकली। फॉर एग्जांपल, योर टीम विनिंग अ मैच व्हेन द ऑपोजिशन प्लेड पुअरली इन द फर्स्ट इनिंग्स। वो 3 रन करके पूरी टीम आउट हो गई। अब कितना आपको परेशानी होगी कि आपकी टीम जीतेगी या हारेगी। होपफुली इफ योर टीम इज better than them. All right. Predictability reduces the entropy, surprise और information. Predictability से entropy reduce हो जाती है। अब अगर मैं कभी किसी लेक्चर में आपसे ये कहूँ ना कि अगर मुझे इस आउटकम का पता, इस फीचर की आउटकम पता लग जाए, तो मैं श्योर हूँ कि मेरा लेबल क्या होगा। दैट मीन्स कि इस फीचर ने मेरी
अनसर्टिनिटी को बहुत रिड्यूस कर दिया है। तो इट्स अ वेरी हाईली इंफॉर्मेटिव फीचर। तो मैं ये कहूँगा कि इस फीचर की मेरी आउटकम के साथ म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन बहुत हाई है। दिस इज़ अ वेरी टेल टेल फीचर, दिस इज़ अ वेरी रिवीलिंग फीचर जो मेरी आउटकम रिवील कर देता है। So an attribute that has high mutual information with an event, if revealing it, हम ये कहेंगे कि attribute की high है, अगर इसको reveal करने से it would decrease our surprise या entropy या uncertainty about the outcomes of a significantly. ठीक है, so ऐसे attributes जो बहुत revealing होते हैं outcomes के बारे में, हम कहते हैं कि इनकी बहुत high mutual information है with that event. ठीक है, क्योंकि इनके बारे में अगर पता लग जाए तो ये पता लग जाएगा कि हमारी आउटकम फाइनली क्या आनी है। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर अगर आप फौज में भर्ती हाइट की बेस पे सिर्फ होते होते और एक हाइट का आपको लिमिट पता होती और मैं आपको फीचर्स बहुत सारे दे देता, वेट और स्किन कंप्लेक्शन और व्हाटएवर और आई डोंट नो बॉडी मास इंडेक्स, लेकिन हाइट का फीचर मेरे पास पड़ा होता और मैं जब तक आपको हाइट नहीं बताऊंगा तब तक आपको ये नहीं पता होगा कि इसकी भर्ती हुई है नहीं, एज्यूमिंग कि हाइट ही वो फीचर है जिसकी बेस पे फर्ज करें कि वो रख रहे हैं फौज में। ठीक है, सो देन हाइट इज द टेल फीचर, टेल मी द हाइट एंड I'll know automatically whether that person got inducted into the military services or not. ठीक है, I'm just making up examples here just to make the concept more clear. If the entropy of the information source drops, we can ask fewer questions to guess the outcome. ठीक है, अगर एंट्रोपी ड्रॉप हो जाती है मीनिंग कि स्क्यू पैदा हो जाता है तो तब हम कम क्वेश्चन से भी, जैसा कि अभी हमने देखा है मशीन 2 के केस में, विद फ्यूअर क्वेश्चंस we can find out the outcome. The bit here is our measure of information or the measure of surprise. ठीक हो गया? All right. When we use natural logs, जैसे हमने कहा, the unit is nats. Sorry, मैंने पहले शायद nits कहा था. The unit is nats, natural digits, rather than bits. ठीक है? अच्छा जी, so now with this more enhanced background that you have on entropy, हम वो ट्री की कुछ एग्जांपल्स को रिविजिट करते हैं और दोबारा से देखते हैं कि अब हमें वो एग्जांपल्स किस तरह से समझ में आती हैं। सो रिमेंबरिंग कि हमारा जो एंट्रोपी का फॉर्मूला है वो ये है। अब हम ये देखते हैं कि ये एक सिस्टम है जहाँ पर देर आर 10 पॉजिटिव एग्जाम्पल्स एंड 1 नेगेटिव एग्जाम्पल। इसकी एंट्रोपी क्या होगी? दिस इज अ skewed distribution, so it should have a low entropy. There is a one low probability event, very surprising, but there are many high probability events which are not surprising. So on average it should not be very surprising. ठीक है, सो यहाँ पॉजिटिव की प्रोबेबिलिटी, नेगेटिव की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई, एंड देन वंस वी फाइंड द एंट्रोपी ऑफ इट व्हिच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हाई प्रोबेबिलिटी इवेंट इनटू द सरप्राइज ऑफ द हाई प्रोबेबिलिटी इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लो प्रोबेबिलिटी इवेंट एंड द सरप्राइज एसोसिएटेड विद द लो प्रोबेबिलिटी इवेंट, एंड इट कम्स आउट टू बी 0.43. ओके, मेक सेंस? आगे चलते हैं। In this example, again there is much more skew, so इसकी uncertainty उससे भी कम होनी चाहिए, overall surprise उससे भी कम होना चाहिए, और हम इसको निकाल कर देखते हैं and it comes out to be 0.28. ठीक है, जैसे जैसे अगर पॉजिटिव बढ़ाते चले जाएंगे उतने ही हम श्योर होते जाएंगे कि आउटकम क्या होनी, उतनी हम कम सरप्राइज होंगे ऑन एवरेज कहना बड़ा जरूरी है, वरना अगर आप कहेंगे नेगेटिव आ गया तो आप बहुत सरप्राइज हो जाएंगे। यस, बट ऑन एवरेज हम बहुत कम सरप्राइज होंगे। यहाँ पर ऑन एवरेज हम बहुत ज़्यादा सरप्राइज होंगे। आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं, एंड यू कैन सी हियर ये दोनों इक्वल हैं, और लिहाजा जब इसकी एंट्रोपी निकाली तो इट कम्स आउट टू बी द मैक्स फॉर 2 पॉसिबल आउटकम्स व्हिच इज 1. सिमिलरली हियर यहाँ बढ़ गई हैं, दी रॉ नंबर ऑफ आउटकम्स बढ़ गई हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटीज एसोसिएटेड सेम है, सो लिहाजा जो इसकी एंट्रोपी आएगी वो सेम होगी, इसके बराबर होगी। इन दोनों की एंट्रोपी इक्वल है बिकॉज दोनों केसेस में हम इक्वली अनसर्टन है। 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव भी होता तो हम उतने ही अनसर्टन होते। ठीक है, तो hopefully now this, with the new added perspective you have, this is much more clear. अच्छा जनाब, अब क्विकली एक ज़रा गियर चेंज करते हैं और एक और चीज़ की बात करते हैं। लैंग्वेज मॉडल्स याद है ना आपको? सो लैंग्वेज मॉडल्स असाइन प्रोबेबिलिटीज़ टू अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। ठीक है, सो ये हमने इससे पहले जब हम बात कर रहे थे बेस थ्योरम की, और उस ज़माने में हमने इसकी काफ़ी डिटेल में बात की थी। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मेनली टॉपिक है, लेकिन इसकी ज़रूरत आपको ज़ाहिर है मशीन लर्निंग में जगह जगह पड़ती है। सो लैंग्वेज मॉडल्स आर बेसिकली क्लासीफायर्स that assign probabilities to all the V outcomes. V क्या है? जो हमारी vocabulary है, so words को probabilities देते हैं, और sequence of words को भी probability दे सकते हैं। तो वो आपको याद होगा, हम unigram, bigram, trigram and different किस्म की हम probabilities जिनकी बात करते थे, वो basically sequence of words को probability दे रहे थे। ठीक है, आपको याद होगा, ये सारी हमने discussion की हुई है। So but how do you evaluate your language models? So if we are given a corpus of text, and so a data set of text, and we want to compare two different language models,
कि इनमें से अच्छा कौन सा है। तो हम क्या करते हैं, वही हमारा रिवायती तरीका, हम ट्रेनिंग और वैलिडेशन या ट्रेनिंग और टेस्ट सेट में अलग अलग कर देते हैं, और उसके बाद वी ट्रेन द पैरामीटर्स ऑफ बोथ मॉडल्स, लेट्स से L1 एंड L2, दोनों को हम ट्रेन करते हैं ट्रेनिंग सेट के ऊपर, और उसके बाद कंपेयर करते हैं कि हाउ वेल द ट्रू टू मॉडल्स L1 एंड L2 फिट द टेस्ट सेट या फिट द वैलिडेशन सेट। तो ये आपका वैलिडेशन सेट है, और इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा इसको फिट कर रहा है। बट व्हाट डज इट इवन मीन कि गुडनेस ऑफ फिट है क्या, अच्छा फिटिंग होना क्या होती है। इसका मतलब ये होता है कि विच एवर मॉडल असाइंस अ हायर प्रोबेबिलिटी टू द टेस्ट सेट, meaning it more accurately predicts the test set, या meaning it is less surprised by the test set। लेकिन कैसे, दो कदमों में हम भागकर एंट्रोपी की गुफ्तगू तक आ गए। ठीक है, दोनों मॉडल्स को टेस्ट सेट पकड़ाएं और उससे ये कहें, ये आपको वो जो जनरेटिव और डिस्क्रिमिनेटिव की गुफ्तगू याद है, ये बिल्कुल उस तरह की गुफ्तगू हो रही है। L1 से कहें कि इस टेस्ट सेट को जनरेट करने की प्रोबेबिलिटी बताओ मुझे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुमने ये कहा होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। L1 से पूछें कि प्रोबेबिलिटी असाइन करो इस वर्ड सीक्वेंस को पूरे को, और L2 से भी कहें कि प्रोबेबिलिटी असाइन करो इस वर्ड सीक्वेंस को पूरे को। सो हम करते क्या हैं, एसेंशली हम करते ये हैं कि हम बेसिकली इन दोनों की क्रॉस एंट्रोपी निकाल लेते हैं, और अब हम ये देखते हैं कि ये होता कैसे। So the cross entropy is defined as the average number of bits needed to encode data coming from a source with a distribution P when we use a model Q। ठीक है, इस बात को ज़रा समझ लेते हैं। हम क्या ही रहे हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि मेरा लैंग्वेज मॉडल L1 है और ये मेरा वैलिडेशन सेट है, या फाइनल अगर कर रहे हैं तो टेस्ट सेट है। ठीक है, सो मेरे L1 के नज़दीक एक वर्ड है, फॉर एग्जांपल when, जो यहाँ पे आया हुआ है। L1 इसको एक प्रोबेबिलिटी असाइन करेगा, लेट्स से P ऑफ K। सिमिलरली इस टेस्ट सेट में भी इस वर्ड की एग्जिस्टेंस की मैं प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यूनिग्राम प्रोबेबिलिटी है, तो हाउ फ्रीक्वेंट इज दिस वर्ड, सो सिंपल हम फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की मदद से निकाल सकते हैं कि व्हेन कितना प्रोबेबिलिटी है, और मैं ये कहूँगा कि जो टेस्ट सेट के नज़दीक ये इतना प्रोबेबल है। ठीक है, नाउ देयर कुड बी टू पॉसिबल थिंग्स, आपके पास PK है और आपके पास QK है। यहाँ पर PK है और सरप्राइज आप निकाल रहे हैं QK का। अब इन दोनों में क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि PK भी हाई है और QK भी हाई है। अगर ये दोनों हाई हैं तो दैट मीन्स कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 के करीब करीब एक नंबर होगा और यहाँ पर भी 1 के करीब करीब एक नंबर होगा। दैट मीन्स इट्स गोइंग टू बी अ बिग वैल्यू हियर, बट इट्स गोइंग टू बी अ बिग वैल्यू हियर विच इज़ गोइंग टू मेक अ almost close to a zero value here. That means the overall sum would be very small. So दोनों high हैं, तो जो इसका जो product है, sorry, overall product would be very small. So smaller outcomes आएंगी हमारे पास अगर ये दोनों probabilities मिलती जुलती हैं। Whereas if one of them is high and the other is low, फर्ज कीजिए, let me rub this, फर्ज कीजिए कि आपके पास यहाँ पर 1 जैसा नंबर है और यहाँ पर 0 जैसा नंबर है। जब यहाँ 0 जैसा नंबर आएगा, 0 से मिलता जुलता नंबर आएगा, तो दैट मीन्स कि इस जगह पे बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, लिहाजा दिस इज गोइंग टू गिव अ लार्ज वैल्यू। सिमिलरली अगर ये लो है और ये हाई है, तो इस केस में यहाँ पे 0 के करीब करीब एक नंबर होगा, लेकिन यहाँ पर इसमें जो है वो एक 1 के करीब करीब नंबर होगा, इस वाली जगह इसमें 1 के करीब करीब नंबर होगा। तो उस केस में ऑब्वियसली दिस विल लीड टू अ स्मॉलर वैल्यू, सो दिस विल लीड टू अ smaller value. So but this kind of a mismatch where I assign, my model assigns a high probability, whereas that event is a very low probability event, that's going to lead to very large outcomes. ठीक है, so this mismatch, in other words, if जो वो expect करता हुआ आया model probabilities, अगर वैसी probabilities उसको वहाँ पर नहीं मिल रही, वो event वहाँ पर नहीं मिल रहे, यानी वो उसको generate करने में बहुत ज़्यादा surprise हो रहा है, तो that means I'm going to get a high cross entropy. So a high mismatch would lead to a high cross entropy. A low mismatch is going to lead to a smaller cross entropy. ठीक है, matching smaller entropy, mismatch higher entropy. So हमने कहा यहाँ पर क्या है, just clearing this out. We draw the sequences according to the probability distribution P, but sum the log of their probabilities according to the distribution Q. ठीक है, so I hope this is clear to you. So this is your cross entropy. ये हम इससे पहले भी यूज कर चुके हैं और आपको याद होगा कि हमने इसकी एक इक्वेशन भी बनाई थी मैच और मिसमैच के केस में, जब क्रॉस एंट्रोपी लॉस हम बना रहे थे।
ऑलराइट, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल हियर, ये दो हमारी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, हम इन दो का हम क्रॉस एंट्रोपी निकाल सकते हैं। बाय द वे इट्स नॉट अ कम्यूटेटिव थिंग, दोनों डायरेक्शन से निकालेंगे तो डिफरेंट आएगी। सो एच ऑफ पी क्यू अगर आप निकालेंगे तो 3.288 आएगी, और एच ऑफ क्यू पी निकालेंगे तो 2.906 आएगी। एंड वी सॉ द रीज़न कि ये मिसमैच की रीज़न क्या है कि जब वो एक स्मॉल और दूसरा लार्ज हो, सो इफ़ पी स्मॉल क्यू इज़ लार्ज एंड इफ़ क्यू इज़ स्मॉल पी इज़ लार्ज, तो दोनों केसेस में हमारे रिजल्ट्स डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। ऑल राइट, एंड अगर हम किसी भी एक एक डिस्ट्रीब्यूशन का इसके अपने साथ क्रॉस एंट्रोपी निकालें, सो इट्स गोइंग टू बी दिस। बट व्हाट इज दिस? दिस इज essentially its own entropy. This is not even a cross entropy anymore. This is just its own entropy. So essentially HPP is k is equal to 1 to k pk log base 2 of 1 over pk, which is just h of p, जो हम इससे पहले निकाल कर आए। So in other words, the smallest value of cross entropy that you can have is with your own self, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा तो अपने आप को मैच करते हैं ना, इससे ज़्यादा ये इस कोई मैचिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकती। सो मैचेस गिव यू लो सरप्राइज, मिस मैचेस गिव यू हाई सरप्राइज, राइट? यही हमने अभी कहा है ना। और ये दोनों डायरेक्शन में निकाल कर हमें ये भी पता लग जाता है कि किधर हाई और किधर लो है, और कौन सा मॉडल किस तरह से सरप्राइज हो रहा है। सो नाउ वी हैव अ लिमिट, we have a lower limit on the number of bits for the cross entropy. So minimum ये हो सकती है जो सोर्स की अपने साथ है, ठीक है। So इस Q भी अगर आप निकाल लें, so this is the smallest, Q अपने आप से कितना सरप्राइज, और देख सकते हैं आप यहाँ पर ये भी Q में स्क्यू ज़्यादा है, तो Q की एंट्रोपी कम है सोर्स की, और P में जो है वो स्क्यू थोड़ा सा कम है, उसमें ज़रा प्रोबेबिलिटीज़ एक दूसरे के करीब करीब हैं, देयरफॉर उसकी ओवरऑल एंट्रोपी जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। सो नाउ आई होप these examples are making the concept further clearer to you. So therefore always ये वाली लिमिट हमेशा मैच होगी, HPP is less than or equal to HPQ, and similarly HQQ is less than or equal to HQP, ठीक है। सो क्रॉस एंट्रोपी विद अ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ज़्यादा या मिनिमम इक्वल हो सकती है। वो किस केस में होगी? वेयर P इज इक्वल टू Q, वहाँ पर ये इक्वल काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। ये चीज़ मैंने लिखी भी थी, सो आई डिडंट नीड टू एक्चुअली राइट इट। सो नहीं, अच्छा ये डिफरेंट चीज़ है। सो दिस इज जस्ट बेसिकली राइटिंग द PP एज h ऑफ p, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। All right, G. So cross entropy, the more accurately Q models P, the closer the cross entropy of PQ will be to the true entropy of HP. That's the difference between HPQ, and the HP is a measure of how accurate the model is, ठीक है। तो आप वो भी निकाल लेते हैं और ये भी निकाल लेते हैं, आपको इससे पता लग जाता है कि उसकी इनहेरेंट एंट्रोपी कितनी है, इस मॉडल की इनहेरेंट अनसर्टिनिटी कितनी है इस मॉडल के अंदर, और फिर दूसरे के साथ निकाल के देख लेते हैं कि अब ये अनसर्टिनिटी एक डिफरेंट मॉडल जो है वो कितना अनसर्टन है इसके बारे में, और इन दोनों का डिफरेंस हमें बता देता है कि कितना बेहतर ये और हो सकता था अगर ये एग्जैक्ट मैच कर जाता इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो बिटवीन टू मॉडल्स Q1 and Q2 of P, the more accurate model will be the one with lower cross entropy with P, ठीक है। सो एंड फाइनली दिस इज जस्ट अनदर मेजर, मैंने कहा आपको उसका नाम पता लग जाए, इसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, कभी आप NLP का कोर्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसकी डिस्कशन होगी कि इट्स जस्ट 2 raised to the power of the entropy। ये यहाँ W का मतलब जो है यूजुअली हम W वर्ड सीक्वेंसेस के लिए यूज़ करते हैं। सो द entropy of this word sequence is W, and the perplexity of this is just 2 raised to the power this entropy of W। तो ये आखिर में थोड़ा सा मैंने डिस्कशन जो है वो क्रॉस एंट्रोपी का इसलिए डाल दिया बिकॉज इट्स अ रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ऑल्दो इट्स यूज्ड इन स्लाइटली डिफरेंट डोमेन्स, लेकिन आपको पता होना चाहिए और आपको मालूम होना चाहिए कि ये किस तरह लिंक्ड है और किस तरह से ये आपस में एंट्रोपी, परप्लेक्सिटी, क्रॉस एंट्रोपी किस तरह से आपस में रिलेटेड है, ठीक है जनाब। सो यहाँ पर हम रोकते हैं। होपफुली इस डिस्कशन के बाद एंट्रोपी, उसका कॉन्सेप्ट, उसकी इंट्यूशन, वो कहाँ यूज़ होती है, किस तरह होती है, ये आपके जहन में अब क्लियर है। सो विल स्टॉप हियर, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।